મૂકીને રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધીમાં તમને મળશે. ના મળે તો સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢીને મિહિર છોટે ભાઈ તારી બુક લઈ ગયા હવે લેવા નથી જો બેસી પણ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે યાદ રાખ, હમણાં લખવાની છે હું કહું છું તો એ તમારે કેરેક્ટર સવારથી સાંજ સુધીમાં મળશે. ના મળે તો શનિવાર, રવિવાર, સોમવાર જ્યારે તમારી કોઈ છુટ્ટીનો દિવસ આવે તમે સ્પેસિફિક એનો ટાઈમ કાઢીને તમે જોવાની કોશિશ કરજો. જોવો એટલે કેવું છે, જો મેં મિહિરને જોયો અને હું નીકળી ગયો તો મને યાદ નહીં રહે. સાચી વાત છે કે નહીં? એ શક્ય જ નહીં બને. હે અનંતાભાઈ આંખ બંધ કરો. અમારા બૂટનું આંખો સાચી બંધ કરો, ખોટું નહીં. ચલો જતીનના પગના મોજાનો કલર બોલો. સરસ, પરફેક્ટ છે. અને મારા બૂટના જે તળિયા આવે એનો કલર અને મારા બૂટમાં કેટલા કલર છે? 2 કલર છે પણ મને એક્ઝેક્ટ યાદ કાઈ વાંધો નહીં. મારા હાથમાં કેટલી આંગળી છે? 5, 2 થઈને 10. હા, અચ્છા આંગળીમાં બીટી છે કેટલી છે? નથી. ગળામાં ચેન છે 2, 3, 1 નથી. બરાબર છે. ઓકે બીજું કઈ બાજુવાળા ભાઈ જિગ્નેશભાઈ છે એમના ગળામાં, એમના હાથમાં આંગળી એટલે આંગળી વીટી, પગમાં મોજાનો કલર ખબર નથી? ખબર કશો ખોલી દો. જો બધું મારું બધું ના એવું નથી, ઘણું સાચું પણ કેવું છે એનું કારણ મારું એક કે તમે જોયા મને પણ ઓબ્ઝર્વ નહીં કે તમારા બૂટ જોયા, કલર બે છે પણ યાદ નથી રાખે. કારણ કે એ ક્યાં જરૂર છે સાહેબ? મારે આમના મોજાનો કલર તમારે ક્યાં યાદ રાખવાની જરૂર છે? એટલે તમે એને ઓબ્ઝર્વ નથી કર્યો. પણ હવે આજ પછી તમે જે જુઓ એને માથાના વાળથી પગના નખ સુધી ઓબ્ઝર્વ કરવાનો છે. કારણ કે આર્ટિસ્ટ જ્યારે ડ્રો થાય ને, રાઇટર જ્યારે ડ્રો કરે ને ત્યારે માથાના વાળથી પગના નખ સુધીની તૈયારી કરી લે છે. તમે સારા પિક્ચરો ને સારો રાઇટર, સારો ડાયરેક્ટર ને સારો એક્ટર ત્યારે જ એવોર્ડ લઈ જાય જ્યારે એનું ઉપરથી નીચે સુધી. એમ નથી થતું સારી ફિલ્મો જે એવોર્ડ લઈ જાય, ચલ તું કાલે એક્ટિંગ કરવા આવી જજે, કાલે તારા પિક્ચરમાં આવી જવાનું ભાઈ, ત્યાં જઈને ડાયલોગ્સ. એ પિક્ચર ક્યારેય સફળ થઈ નથી, એ વ્યક્તિ ક્યારેય તાલીઓ મળી નથી. તો આટલો અભ્યાસ થાય તો જ એક્ટર બને. બરાબર છે? તો આજથી તમારે આ બધું જ જોવાનું છે. સવારે ઉઠીને મમ્મીને જોવો છો કે પાપા को देखते हो, पर बगल वाले आंटी कहीं अगर खिड़की खोलते हो तो बगल वाली आंटी दिखाई देती है तो उसे भी देखो. तो वो सुबह डेली आप उठते हो, आप अपनी विंडो खोलते हो तभी सामने आंटी कपड़ा सुखा रही है, तो हर बार देखो कैसे होती है उनकी हरकतें. अगर कपड़े ऐसे ही नॉर्मली सुखाया जाता है लेकिन नीचे शोहर से पंगा या झगड़ा हो गया, नीचे सास से झगड़ा हुआ है और तब वो कपड़ा सुखा रही है ऊपर. है उसको मैके जाना था, सास ने मना किया, घर वाले ने मना किया और वो गुस्से में कपड़े सुखा रही है और नॉर्मल सिचुएशन में सुखा रही है और जल्दी सुखा के उसको कहीं शादी में जाना है, हस्बैंड बोला जल्दी तैयार हो जाओ मैं गाड़ी लेके खड़ा हूं, तो तीनों बार हर बार उसकी कपड़े सुखाने की हरकत डिफरेंट आएगी कि नहीं आएगी? बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए और इतनी तैयारियां होनी चाहिए. तो एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नोट डाउन कर लीजिए. ऐसे कैरेक्टर में बोलने जा रहा हूं जो आपको रास्ते में मिले ना मिले या कहीं से भी आपको फुर्सत निकाल के वो देखना है. जतिन भाई આપણે લખેલું તમે નહીં લખતું દીકરીને જોડે અહીંયા જ છે બેટા પેન આપે છે બુક લે ચલો टाइटल ये देना है आपको या नए पेज में लिखो. हमें ऑब्जर्व किसको करना है? क्योंकि मैं बोला ना कि अगर अच्छा एक्टर बनना है तो आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन पावर और एक इमेजिनेशन पावर. और कल्पना उसी की कर सकते हो जो आपने कहीं देखा या सोचा होगा. अगर सोच नहीं है तो देखेंगे क्या, और देखा नहीं तो सोचोगे क्या? है कि नहीं? સર જોયું ના હોય અમેરિકા જોઈશું, અમેરિકાના સપના તો જોવાય ને, અમેરિકા વિશે વિચાર આવે, બધી જ વાત સાચી પણ એ લાકડે માકડું થાય, પરફેક્ટ ફિટ ના થાય. ચલો કરશું ભાઈ? કરશું સર? બોલો
જેને જે લેંગ્વેજમાં ફાવે એ લેંગ્વેજમાં લખી શકો, गुजराती, हिंदी, उर्दू, मराठी। ओके देखो पहले शुरुआत हर किसी चीज की होती है तो अपने घर से होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले उठो तो मैं तो ये चाहूंगा कि पहले अगर कोई अपने इष्ट देव को देखते हैं तो ठीक है, दर्शन कर लो, पूजा पाठ कर लो, ठीक है बात है। या फिर पहले उठ के अपना चेहरा देख लो, है कि नहीं। डेली हम उठते हैं तो देख लेना हमारी उठने की हरकत, मतलब अपने आप को, क्योंकि दुनिया देखते देखते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं। तो प्लीज उठने के बाद पहले अपने आप को देखिए कि हर सुबह मेरी उठने का तरीका और मैं उठने के बाद मेरा चेहरे पे भाव क्या है। देखो इसमें सिर्फ हरकतें नहीं देखना है, बॉडी लैंग्वेज देखना है, बाल देखना है, कपड़े देखना है, हमारा क्या हाल है, आप समझे कि नहीं। શું જોવાનું પહેલા પોતાની જાતને, એટલે ખબર પડી જાય કે હું ઊભો થયો ત્યારે હું કેવો, તમારો શર્ટ આમ થઈ ગયો તો, હે લુંગી આગળ પાછી થઈ ગઈ છે, મેં ચડ્ડો પહેર્યો તો બરાબર છે, મારા વાળ વિખાઈ ગયા છે, સાચી વાત છે કે નહીં। કારણ કે રાઇટર ડાયરેક્ટરના બધી વસ્તુનું એક્ટરને નોલેજ હોવું જોઈએ, કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ ઉઠે છે અને એનો મારો સીન પિક્ચરાઇઝ કરવો છે તો હું કેવો બતાવી છે। ચલ ભાઈ તું સુઈ જાય, ચલ તું આવી જાય એમ ચાલે, એવું ના ચાલે, બરાબર છે। તો પહેલા પોતાની જાતને જોવો કે સવારે હું ઉઠું છું ત્યારે કેવો લાગુ છું, નંબર 1। પછી તમારી દિનચર્યા જે કરો છો હા તમે સમજી લો પહેલા, પછી તમારે જો હું બોલું છું શબ્દો તમારા તમને જે સમજાય એ ભાષામાં લખજો, પણ પહેલું फर्स्ट मेरा कहने का मकसद क्या है कि आप पहले उठो तो अपने आप को देख लो, अपना उठने का तरीका, उठने के बाद अपना चेहरे और अपने कपड़े को ऑब्जर्व कर लो कि आज मेरा ये हाल है, दूसरे दिन क्या हाल है, तीसरे दिन क्या हाल है, ठीक है। अब समझे। अब उसके बाद अपनी डेली की जो दिनचर्या होती है, ब्रश करना, नहाना धोना, तो उस वक्त कभी कभी देखो इसमें भी बहुत वेरिएशन होता है ना, कभी कोई चीज परेशानी में कर रहे हो नहाना धोना तो उस हिसाब से होगा, कभी आदमी बहुत खुश होता है, आज कॉलेज में लड़की को वादा किया है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ 9 बजे, है और उसी की इंतजार में और जल्दी से भागने की कोशिश में जल्दी हम नहाने चले जाते हैं, तो मेरे जैसे अच्छे बेसुरे भी अच्छे अच्छे गाने निकालने लगता है? इंतजार हो गया वोटेवर, क्या मतलब आना नहीं है, लेकिन गाने गाते हो जाता है गाना, फिर तुरंत वो तैयार हो गया आदमी आ जाता है कि नहीं। तो अपने आप को देख लो, फिर अगर डाइनिंग पे जाते हो या मम्मी पापा दादा दादी जो आपके फैमिली में, तो पहले मैं लिखवाता हूँ, अगर नहीं है तो दादा कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते तो बगल वाले के दादा दादी को देख लेना, सब दादा नहीं है तो नहीं देखा ऐसा मत बोलना, है कि नहीं। तो मम्मी पापा, अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको ना मिले तो आप दूसरे के किसी कैरेक्टर को देख से, अभी ऐसे भी हम लोगों को आदत है दूसरे के घर में झांकने की, है कि नहीं। इंसानियत में ये एक बहुत बुरी हरकत है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो ऐसा कि किसी दोस्त के वहां जाते, उसकी मम्मी पापा और दोस्त के साथ कैसा बिहेव करते वो उसमें इमेज कर लो अपने आप को, हो जाएगा, है कि नहीं। तो मम्मी को देखना है, दिन भर की जितनी हरकतें मम्मी की देख सको वो, पापा की दिन भर की हरकतें, बीवी अगर है तो उसकी हरकतें, तो किसको देखना है, माँ बाप है, माता पिता, दादा दादी है तो और बढ़िया, दादा दादी। संयुक्त कुटुंब से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है पवित्र, तो अगर संयुक्त कुटुंब होगा तो आपको कहीं देखने नहीं जाना पड़ेगा। तो मम्मी पापा दादा दादी को देखना है, फिर बीवी है तो बीवी को देखना है, अगर बीवी नहीं है तो बगल वाले अंकल की वाइफ को देख लेना, है कि नहीं। अगर आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और को तो देख सकते हो ना, उसके लिए वेट मत करना शादी हो जाए वहां तक, देखने का चालू रखो, ऑब्जर्वेशन चालू रखो, है। तो क्या करना है, फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, अपने आप को देखना है, मम्मी को देखना है, पापा को देखना है, घर में दादा दादी है तो उसको देखना है, बड़े भाई छोटा भाई जो है उसको देखना है, बहन बड़ी छोटी है उसको देखना है कि नहीं। अब बड़े भाई की वाइफ है तो उनको भी देखने का मतलब मेरा है कि उनकी हरकतें क्या है, उनका आना जाना चलना उठना बैठना बोलना, और डेली का काम डेली वो करते हैं, आप डेली उनको मिलते हैं, लेकिन आप देखना 30 दिन 10 दिन 7 दिन जितनी आपको मौका मिले, उनके हर दिन में कुछ न कुछ वेरिएशन होगा, क्योंकि कुछ न कुछ उसके दिमाग में चलता होता है, उसी हिसाब से उसका बिहेव हो जाता है
है? जैसे कि अगर आपके बड़े भाई की वाइफ है, आप सुबह उठ के नीचे जाते हो नाश्ते पे टेबल पे, डेली वो भाभी आपको चाय नाश्ता तैयार करके दे देती है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि बच्चे की स्कूल के लिए देरी हो गई है, तो वो भागी जाएगी, अरे भैया जिग्नेश भैया, मीर भैया, मुझे देरी हो रही है, प्लीज आप इतना सैंडविच ले लेना, मैं जा रहा हूँ पिंटू को छोड़ना है ट्यूशन, है कि? तो भागी जाएगी, तब वो नहीं रुकेगी उतनी, क्योंकि उसको देरी हो रही है। वही भाभी जो पहले अगले दिन आपको आराम से खिला रही थी, आज वो जल्दबाजी में भाग रही है। तो सिचुएशन से ब्रेक करती है ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप अगर ऐसी हरकतें करनी है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, आप समझेंगे नहीं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्व करना है। तो मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, बगल वाले अंकल आंटी अगर मिलते हैं तो, है? क्योंकि पड़ोस में अंकल आंटी भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, तो उनकी भी हरकतें, आपके भाई बहन छोटे बड़े जो हो। दूसरी बात, सास बहू की बातें सुनना है, देखना। अब सास बहू कहाँ, आपके घर में अगर आपकी मम्मी है और आपकी दादी है तो उनकी बातें देखो, कभी आराम से घर में लेटे लेटे सो जाओ, आंखें बंद करके रखो चादर ओढ़ के, और देखो, सुनो पहले तो कि क्या बातें चल रही है, फिर ऐसे देखो जैसे उनको पता ही नहीं है कि आप उनको देख रहे हो, है कि नहीं? और पता चले तो भी क्या है, उनको कहाँ पता चलेगा आप उसको क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो, है कि नहीं? तो उनकी जो बातें हरकत होगी, जो सास बहू की, हर दिन बदलेगी, कभी नोकझोंक होगी, कभी प्यार मोहब्बत होगी, है कि नहीं? कभी कभी बगल वाली आंटी की चुगली होगी, ये सब चलेगी सास बहू में। तो आप इनको देखिए, है कि नहीं? सीनियर पार्क में जाइए, फिर सीनियर सिटीजन पार्क होता है, या कहीं गार्डन में जाइए, वहां सीनियर सिटीजन बैठते हैं, कई मंदिर टेंपल में भी सीनियर सिटीजन बैठते हैं, उनको दूर से ऑब्जर्व कीजिए, उनकी बातें सुनिए, तो उनकी बात करने का तरीका, उनका बैठने का तरीका अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो देखिएगा सीनियर सिटीजन को। अच्छा, उसी तरीके से पार्क में खेलते बच्चे को देखिए, स्कूल में मस्ती करते बच्चे को देखिए, पढ़ने वाले बच्चे तो शायद आप देख सको तो ठीक है, अगर जो पढ़ते हैं स्कूल में उसको भी देख लीजिए, ज्यादातर पढ़ते नहीं, स्कूल में पढ़ते हैं क्या आप? तो स्कूल में पढ़ते बच्चों को देखिए। वही बच्चा जो बाहर रास्ते में कहीं चौराहे पे जियो दंगा मस्ती शरारतें करता है, वही बच्चा मम्मी पापा के सामने बिल्कुल शांत और सरल हो जाता है। तो उसकी हरकतें देखिए, है कि नहीं? बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है ये लोग, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा को लगता है यार मेरा बच्चा बहुत सयाना है, बहुत सीधा साधा है, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है बच्चा अपना हरकतें दिखाता है, तो अगर वो तो 5वां कैमरा मैडम देख ले तो पता चले मम्मी को कि भाई क्या है अपना बेटा, है? तो उनको देखना है। अब ये तो हुई अपने अगल बगल वाले की बात, लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज के प्रोफेसर को देखिए, प्रिंसिपल को मौका मिलते हैं तो देखिए, दो प्रोफेसर की बातें देखिए कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं। देखो इसमें बहुत कुछ सीखना है, मैं बोलता हूँ एक्टिंग में, क्योंकि हर बार आप अगर सिंपल ऐसे ही चलते जाएंगे, हर बार हर चीज में, पुलिस वाले हैं तो भी ऐसे ही चलते जाओगे, एडवोकेट है तो भी ऐसे चलोगे, पंडित है तब भी ऐसे चलोगे, डॉक्टर है तब भी ऐसे चलोगे, तो क्या लाए आप, क्या सीखे? व्हाट इज योर वेरिएशन? आपका वेरिएशन कहाँ है भाई? ये नहीं होगा। अगर पुलिस वाले बनते हो तो आपकी चाल ढाल अलग होती है, एडवोकेट की चाल ढाल अलग होती है, बिजनेसमैन की चाल ढाल अलग होती है। आप समझ रहे हो कि नहीं? हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। सुनो बस, हिलो मत, जितने हिलोगे कुछ नहीं ले जाओगे, दिमाग को चौकन्ना रखे हुए हो, समझे છે ને? તમે ટ્રાય કરજો, ક્યારે વિચાર્યું નહીં હોય તમે, પણ પોલીસ વાળાની સ્ટાઇલ છે, હું તમને કહું પોલીસ વાળો ચાલે છે એમ ચાલો તો, ચલો અહીંયા ઊભો રહી જાઉં છું, પછી કહું ચાલ ભાઈ વકીલ ચાલે છે એમ ચાલજે તો તું, અચ્છા વકીલને પોલીસનું પતિનું વિડિયો રેકોર્ડ કરું છું તમારી, હવે પંડિતજી છે એમ ચાલજે ભાઈ તું, ચલ ઓકે, આ ત્રણ થાય એટલે પતી ગયું, અચ્છા ચલ તું પંડિતજી તરીકે ચાલી ગયો, ઓકે, તું ગુજરાતનો પંડિતજી છે, યુપી બિહારનો પંડિત છે, આમાં સાહેબ શું વેરિએશન હોય? બહુ જ વેરિએશન છે। मैं तुमने शुरू कीधु, एक कैरेक्टर अगर आप उठा लो, सिर्फ एक कैरेक्टर, अगर उसको सीखने में भी अगर आप चाहो तो अपनी जिंदगी निकाल सकते हो। तो अगर नहीं निकालनी है अपनी जिंदगी तो मेरा तरीका, इस शॉर्टकट, ये स्कीम समझ लो। ये ऑब्जर्वेशन का फंडा इतना अच्छा है कि आप इतना सीख लोगे ना, और इतना ऑब्जर्वेशन कर लोगे, आप सब कुछ आ जाएगा बस। क्योंकि आपने આપણે કલર કેટલા લાલ લીલો પીળો કાળો ધોળો ધોળો એવા બધા કેટલા બધા
પણ મૂળ કલર કેટલા? 7 ત્રણ જ કલરમાંથી बराबर है। 3 कलर से 303,000 कलर निकले हैं, आप समझे कि नहीं? तो ये कलर आए कहां से? वो क्रिएटर का काम है, आप समझे कि नहीं? मेरा ये तो कलर्स हमें बनाना है, अपने कैरेक्टर को देना है, अपने रंग से रंगना है। वो कहां से रंग होगी? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेशंस नहीं है। लेकिन अगर आपने हजारों लोगों लाखों लोगों को देखा है तो पक्का आपके पास वेरिएशन आएगा, ठीक है? तो आप लास्ट में क्या बोला, इसको देखना है अंग्रेजी सर्विसमैन गुजराती पंजाबी यूपी बिहार ठीक है? वो तो मैं जस्ट एग्जाम दे रहा था, वो तो प्रोग्राम हाँ वो कोई बात नहीं है तो वो आएगा। हाँ तो बच्चों को देखना है, स्टूडेंट को देखना है, ठीक है? मैं बोलूंगा, मैं जब पूछूं तब आप बोलना, ठीक है बेटा? तो बच्चों को देखना है, स्टूडेंट को देखना है, शरारती बच्चों को देखना है, मस्ती करते देखना है, बच्चे को रोते देखना है, हंसते देखना है, हंसते हुए रोते हुए बच्चों को देखना है। राइट डाउन, पर्टिकुलरली मैं आपको एक एक को खड़ा करके यहाँ पूछूंगा और एक एक पढ़ेगा इधर, क्योंकि उसने क्या लिखा है वो तो मुझे पता चले। गड़बड़ गोटा प्रभु मोटा, आपने ऑलवेज थઈએ खोटा, રસ્તામાં પડે લોચા, ક્યારે બનીએ નહીં એક્ટર મોટા, તો પછી શું કામ આલવાના ખોટા એવા પૈસા? देख बेटा मैं तुझे पूछूंगा, ओके? अभी नहीं, मैं जब चल रहा है लेसन तब पिन ड्रॉप्स आने का आप सुनो मुझे बस अभी। नहीं बेटा तू नहीं लिखेगा अभी, ठीक है? तुझे लिखना नहीं आता मुझे मालूम है, तो कैसे लिखेगा? तो ले आया चोपड़ो लाया छे, कल लेके आया ना बुक, तू लिख लेना, ठीक है? आज बुक लेके आओ, कल लिख लेना, ऐसे हो ही जाएगा। दूसरे की बुक में तो तुम थोड़ी लिख पाओगे, ऐसे थोड़ी होगा, है कि नहीं? मेरी बुक में वही लिखूंगा ना, मैंने आपको बोला था आप बुक लेके आओ, पहले दिन से बोला है, बुक नहीं लाया तो कहाँ लिखोगे? देखो इसके सर पे लिख पाओगे? बस तो छोड़ दो, चलो। हाँ तो शरारती बच्चा, हाँ शरारती बच्चों को देखा, पार्क वाले लोगों को देखा। अब देखो सुबह उठ के हमारी जो रूटीन लाइफ में आपको कुछ नया अभी नहीं दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो, लिखाऊंगा लास्ट में आएगा नया भी, लेकिन शुरुआत तो ये तो कहीं ना कहीं मिलते हैं अपने को। स्कूल में बच्चे छूटे, जो स्कूल से छूटते हैं निकलते हैं, तब स्कूल में जाता बच्चा और आता बच्चा, वो देखो कभी स्कूल में जब सुबह जाता है बच्चा और स्कूल से निकलने के बाद दोनों की हरकतें अलग होती है कि नहीं? और आपकी जो उम्र है, देखो आपकी जो उम्र है, मतलब आप 5 साल के हो, 10 साल के, 20 साल से 25 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल, 75 साल, बस 75 साल तक के बच्चों को तो मैंने पढ़ाया हो, उससे आगे नहीं पढ़ाया तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो भी आपकी एज हो, उस एज के लोग और उसके कम ज्यादा एज वाले लोगों से भी आपको मिलना चाहिए और देखना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जब तक आप उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 25 के हो तो आपको 25 साल के दोस्तों के साथ ही खेलना और ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 15 साल के बच्चे की एक्ट करने को मौका मिले, हो सकता है 25 या 35 साल के हो लेकिन आपको 65 साल के बुढ़े की कैरेक्टर करने को मिले, तो कहां से आओगे? सर आपने तो बोला था, तो मैंने तो हमारे दोस्तों को देखा। ऐसा नहीं है, आप हर उम्र के पड़ाव वाले छोटे बड़े आपसे वो सबको देखिए, मतलब किसी बुजुर्ग आदमी को, बूढ़े आदमी को देखिए, किसी छोटे बच्चे को देखिए, क्योंकि हर इंसान की एक अलग अलग पैटर्न होती है। हर एक बच्चा, हर एक इंसान अलग अलग हरकतें करता है, एक ही सिचुएशन से एक ही होती है कि नहीं? लेकिन हरकतें अलग अलग होती है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? अच्छा, फिर हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में आते जाते जो भी लोग मिले आपको, अच्छा फिर दिन में कभी अगर एक बार या महीने में एक बार आप मंदिर जा रहे हो, तो मंदिर में पंडित को देखिए, जो मंदिर में पूजा पाठ करवाता है ना, एक पंडित वो होता है जो मंदिर में पूजा पाठ कराता है, दूसरा एक पंडित ऐसा भी होता है जो बाहर सब धार्मिक विधियां कराता है, शादी ब्याह कराता है, मरणोत्तर क्रिया कराता है। तो ऐसे जो पंडित होते हैं उनको भी देखिए, मिलिए, ठीक है? उनको ऑब्जर्व करना है। तो पंडित को देखना है, अब आप लिख सकते हो कि मंदिर का पुजारी और एक पंडित ऐसा जो धार्मिक क्रिया कराता है।
फिर अब मंदिर जाते हो, अब मंदिर जाते हैं भाई तो भगवान के द्वार के बाहर अपने को 2-4 भिखारी लोग भी मिल जाते हैं, हैं? तो उसको भी ऑब्जर्व करना है भिखारी को। अब भिखारी मंदिर के बाहर मिल जाए, किसी चार